Hello kiddos, how are you? How are you all? So today we are again here to learn something new. कुछ नया लर्न करते हैं, अपना नॉलेज बढ़ाते हैं. उससे पहले हम एक्टिविटी कर लेते हैं. So just get ready for the activity. Get up, get up, get up, get up, get up. And we'll definitely do nothing but hello everyone. Okay? Ready? 1, 2, 3, go. Hello everyone, how are you? How are you? How are you? Hello everyone, how are you? How are you today? Hello everyone, clap your hands, clap your hands, clap your hands. Hello everyone, clap your hands, clap your hands today. Hello everyone, touch your ears, touch your ears, touch your ears. Hello everyone, touch your ears, touch your ears today. Hello everyone, stomp your feet, stomp your feet, stomp your feet. Hello everyone, stomp your feet, stomp your feet today. Hello everyone, how are you? How are you? How are you? Hello everyone, how are you? How are you today? Hello everyone, jump and dance, jump and dance, jump and dance. Hello everyone, jump and dance, jump and dance today. Yay! Very good. Okay, now are you ready to just the puzzle activity? Okay, let's go. In 3, 2, 1, 4 color combination. Okay, kiddos? 4 color combination. Yes, 4 color combination. In 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. अब आपको क्या करना है? आप you have to hold all the colors. याद रखना है और मैम जब 10 काउंट्स कर लेंगे उसके बाद आपको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना है. ओके या खुद को दोबारा से बताना है. जो भी एल्डर्स पेरेंट्स यहाँ पर होंगे उन्हें बताना है. ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now share fast, share fast, share fast. Okay, great, 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 great. Okay, did you share? तो चलिए देखते हैं हमारा क्या कलर कॉम्बिनेशन था. सो इट वॉज दिस. हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्ट? हाउ मेनी ऑफ यू? ये ग्रेट जॉब. एंड किड्स लेसन को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से देखना है और सबको क्विज अटेम्प्ट करना है और स्टार स्टूडेंट इस बार बनना है. ओके किडोस, स्टार स्टूडेंट आपको बनना है. आपके पिक्चर्स हॉल ऑफ द फेम में पेस्ट हो चुके हैं. आप कैसे पहुंचोगे हॉल ऑफ द फेम पर? आपको बस फ्री कोर्स पे जाना है. मी एंड मैथ फ्री कोर्स. और फ्री कोर्स पे ही आप जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे ही आप जस्ट होवर करोगे तो नीचे आपको हॉल ऑफ द फेम दिखाई पड़ेगा. क्लिक करिए और देखिए स्टूडेंट्स ऑफ हॉल ऑफ द फेम. ओके, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कलर्स इन 3, 2, 1, गो. 1, 2, 3, 4, 5. ओके किडोस. एंड बहुत 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 अच्छे से मन लगा के पढ़ना है. जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो कुछ भी नहीं समझ आता है, आप अपने डाउट्स शेयर करिए. आप अगर ये वेबसाइट पर देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे तो आप कमेंट्स नहीं कर सकते हैं, तो आपका इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा. दिस इज़ वाई आई जस्ट वांट टू से दैट कि आप वेबसाइट पर जा कर के वीडियो देखिए, जहाँ पर आप साथ के साथ वीडियो के साथ आप अपने आंसर्स भी बच्चे कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर इंटरेक्शन फॉर्म होता है. ओके, सो 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, now चलिए शेयर करिए, शेयर करिए, शेयर करो, शेयर करो, शेयर. Great job. Now let's match. Okay, how many of you have answered it correct? How many of you did you answer it correct? Great job. Very well done. And yes, of course, इस वीकेंड मैं आपके साथ एक नई एक्टिविटी, डांसिंग एक्टिविटी, दिस लेगो एक्टिविटी के साथ एक नई एक्टिविटी आपके साथ हम लोग करेंगे. सो रेडी रहिएगा एक सरप्राइज के लिए. ओके, सो लास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 6 कलर्स. Ready, kiddos? Okay, okay, okay. In 3, 2, 1. Dun, dun, dun. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, hold, hold, hold. Okay. So, how many of you have attempted कल वाला क्विज? कल वाला क्विज किसने किसने कर लिया है? Yesterday's quiz. Are you done with yesterday's quiz? And how much did you score? How many of you scored 10? Great job. You are just 4 days left to be the superstar student of the week. Yippee! Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, start sharing. Start sharing, kids. Start sharing. Great, very good, very well done. Okay, अब मैम शेयर करते हैं. Okay, और आपको चेक करना है. So this was the combination. How many of you have done the same? Answered the same combination? Really? You answered it same. Great job, बच्चे. Great job. Okay. So, before starting, I would like to just give you a question today and you have to answer it. Okay? Today we're gonna study a very easy topic, but again very important topic. Okay? It could be easy, but it can create complexity also if you are not understanding or reading or handling it properly. Okay? तो टॉपिक जो हम करने वाले हैं बहुत इजी सा है, सिंपल सा है, बट वो कॉम्प्लेक्सिटी आपके सामने डाल सकता है अगर आप उसको केयरलेसली हैंडल करेंगे तो पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर टॉपिक फॉर टुडे. ओके बच्चों? ओके, so the question is, which place value tells the larger number? Okay, first number is 4, 5, 7, 6. Another number is 4, 6, 7, 6. Okay, we have two numbers here. We have two numbers here. So the question is, which place value tells the larger number? We have some options. Ones. Option B is tens. Option C is hundreds. And but obvious, option D is thousands. Right kids? So what you have to figure out here, आपको यहाँ पर क्या देखना है? Which place value tells the larger number? Okay? Pause कर लो वीडियो को और एक बार ध्यान से सोचकर, otherwise I'm giving you just 10 counts. आप ध्यान से देखिए, अपना ऑप्शन, अपना आंसर लिख लीजिए और फिर मैं जब डिस्कस करूंगी देखिए यू हैव आंसर्ड इट करेक्ट और नॉट. या अगर आप वेबसाइट से देख रहे हैं ना तो तुरंत मैं सबके जो भी कमेंट्स आप करते हो, स्पेशली मैं एज अ इंस्ट्रक्टर, मैं सारे आपके कमेंट्स जाकर के देखती हूँ कौन कौन सा बच्चा कमेंट एक्चुअली कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है. ओके,
सो चलिए स्टार्ट करिए फटाफट फटाफट फटाफट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, done. Are you done, kids? Now we're going to discuss it. So which place value tells the larger number between these two? We have two numbers. कौन से place value से हमें मालूम पड़ता है कि ये larger number है? So this is nothing but option C is correct. Okay, option C is correct here. Okay, how many of you have done option C? Option C is correct. Okay, now I'm going to change it a little bit. और फिर उसके बाद आप बताइएगा. Same question. Okay, kids? Same question. I'm going to change it थोड़ा सा. Okay, now tell me, the question is same, everything is same now, but figure has changed. Now tell me what will be your answer. For the first question, if you have answered it 100, it was correct. For all the student, अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में 100 सिलेक्ट किया था तो आप बिल्कुल करेक्ट थे, और अगर 100 नहीं सिलेक्ट किया था तो हम डिस्कस करेंगे, फिर मैं उसके बाद आपको क्लियर करूंगी कि 100 ही आंसर क्यों था. इसका आंसर और आप अटेम्प्ट करिए. 10 काउंट्स ओनली. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So how many of you have answered and what you have answered? Okay, let's check. So if you have answered it once, did you answer it A once? Is there anyone who has answered it tens, hundreds or thousands? Okay, answer either ones or tens, इन दोनों में से ही है. So जिन बच्चों ने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है वो बच्चे बिल्कुल गलत हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. सो व्हाट आई एम गोना डू, अब हम एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद फिर से हम सेम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो तब तक वो क्लियर हो जाएगा. बट हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो व्हाट वी गोना, इससे तो आपको आइडिया हो ही गया होगा. व्हाट वी गोना डिस्कस टुडे इज नथिंग बट comparing numbers, right? So when we compare numbers, this is a mixed lecture. Like this lesson is for both grade 2 and grade 3. ग्रेड 2 का अलग से इस पर कोई लेक्चर नहीं बनेगा या ग्रेड 3 का नहीं बनेगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बेसिक लेसन. और बस डिफरेंस ये है, ग्रेड 2 के स्टूडेंट्स को 3 डिजिट नंबर कंपेयर करने के लिए आते हैं और ग्रेड 4 के स्टूडेंट्स को 4 डिजिट नंबर तक कंपेयर करने आने चाहिए. ओके, आपके एज स्पेसिफिक 4 डिजिट नंबर्स आपको आने चाहिए. सो सबसे पहला, वी हैव सम स्पेसिफिक रूल्स फॉर कंपेयरिंग नंबर्स. जब हम नंबर्स कंपेयर कर रहे होते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें दिमाग में रखना होता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, सबसे पहला रूल जो होता है वो ये होता है कि आपको दो नंबर्स के डिजिट्स कंपेयर करने हैं. ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ वन नंबर इज 4 2 3 6 and another number is 2 8 2 7. okay, so यहाँ पर मैंने क्या कहा, you have to compare digits. so यहाँ पर 1 2 3 4 digits है हमारे पास, और यहाँ पर this number contains only 3 digits. so जिस नंबर पे कम digits होंगी वो हमेशा छोटा होगा. the number with least number of digit or less number of digits will be smaller.
So if we compare these two numbers, it contains 3 digits and it contains 4 digits. So which one will be greater? Definitely this one. So rule number 1 says आपको सबसे पहले compare करना है digits. Compare number of digits. The number with more number of digits will always be greater. So number, NO for number, with more digits or more number of digits will be greater. ओके किड्स, सो वो नंबर जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स होंगी वो ग्रेटर हो जाएगा. सो इस रूल पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन 24 and 120, which number is greater? Which number is greater? Definitely this one, right? Because it contains more number of digits. It has only 1, 2 digits. It has 1, 2, 3 digits. So this one will be greater. Similarly, if I give you, let's take one more example. If I give you 1400 and another one is 235, which one will be greater? Which one will be greater? The number with 1400 will be greater or 235 will be greater? Which one will be greater? So the number will just count. सबसे पहला रूल क्या कहता है? काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स. सो इस नंबर पे 1, 2, 3, 4 डिजिट्स है हमारे पास. Here we have 1, 2, 3. So which number has more digits? Definitely the left one. So it will be the greater number. Right? Did you understand the first rule? First rule is जिस भी नंबर पे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो हमारा ग्रेटर हो जाएगा. दिस वर्क्स व्हेन टू नंबर्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स. ये तभी काम करता है जब हमारे पास दो कंपेयरिंग के लिए नंबर्स हैं और दोनों में डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. मतलब कोई 2 डिजिट नंबर है, कोई 3 डिजिट नंबर है, कोई 3 डिजिट नंबर है, कोई 4 डिजिट नंबर है. तो कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट comparison between numbers of different digits. Okay, so it could be the comparison between a number or a 2 digit or the 3 digit number, a 3 digit or the 4 digit number, a 4 digit or a 5 digit number, 5 digit or a 6 digit number, like this. आपको कहाँ तक आना चाहिए? मैक्सिमम 4 digit numbers तक. Okay, now this was rule number 1. Okay, let's say for example, ऐसा कोई आइडियल तो नहीं है कि हमेशा आपको 2 डिफरेंट डिजिट्स के नंबर मिलेंगे. मतलब अगर एक 2 डिजिट का नंबर है तो दूसरा 3 डिजिट का ही मिलेगा, या एक 2 डिजिट का है तो दूसरा 1 डिजिट का मिलेगा. इट कुड बी पॉसिबल कि दोनों नंबर 2 डिजिट्स के हों या दोनों नंबर 3 डिजिट्स के हों. राइट? एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट वी विल डू, हाउ विल वी हैंडल दैट सिचुएशन. तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या करेंगे जब हमारे पास दोनों ही नंबर सेम डिजिट्स के हैं. तो आइए देखते हैं rule number 2. So rule number 2 is where both the numbers are of same digits. Let's say for example 428 and 536. ये दो नंबर्स हैं हमारे पास. सो व्हाट विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल विल काउंट डिजिट्स 1, 2, 3, 1, 2, 3. ये तो सेम डिजिट का नंबर हो गया, मतलब 3 डिजिट्स यहाँ पर भी, 3 डिजिट्स यहाँ पर भी. तो रूल नंबर 1 फेल हो गया. रूल नंबर 1 की हेल्प से हम यहाँ पर कंपेयरिंग नहीं कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 2. तो अब हम क्या करेंगे? रूल नंबर 2 कहता है कि अब हमें दोनों नंबर्स के लेफ्ट डिजिट को कंपेयर करना है. सो दोनों नंबर्स का जो लेफ्ट डिजिट है, दिस इज द लेफ्ट डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड दिस इज द लेफ्ट डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर. अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे. ओके, सो वी हैव 4 हियर एंड 5 हियर. विच वन इज ग्रेटर? 5 is greater. So this whole number will be
ग्रेटर, राइट साइड वाला पूरा नंबर ग्रेटर हो जाएगा. This is rule number 2. Rule number 2 says when we have two numbers to compare with both the numbers having same number of digits, then what we do, we just take leftmost digits of each number and we compare them. The number with greater digit at leftmost position will be the greater number. मतलब जब हमारे पास सेकेंड सिचुएशन हमारे पास वो आती है जब हमारे पास दोनों ही नंबर सेम डिजिट्स के हैं, दोनों ही 2 डिजिट के नंबर हो गए, या दोनों ही नंबर 3 डिजिट्स के हो गए, या दोनों ही नंबर 4 डिजिट्स के हो गए. एट दैट टाइम व्हाट वी विल डू, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट मतलब हाईएस्ट प्लेस वैल्यू का नंबर. सो दिस इज वंस, दिस इज टेंस, दिस इज हंड्रेड्स. तो हमने हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू के दोनों नंबर लिए हैं और इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं. जो भी डिजिट बड़ी होगी वो नंबर बड़ा बना देगी. ओके, अगर हमारा 4 और 5 को हम कंपेयर कर रहे हैं, here 5 इज ग्रेटर, सो दिस 536 इज लार्जर देन 428. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, चलिए इंप्लीमेंट करते हैं. सो इफ आई से कंपेयर 29 and 94, we have to compare 29 and 94. तो सबसे पहला रूल तो हमारा कहता है डिजिट्स काउंट करना. we have 2 here, we have 2 here, right? now दो डिजिट्स हैं तो हमारा रूल 1 फेल हो रहा है, तो रूल नंबर 2 को पकड़ते हैं. रूल नंबर 2 सेज लेफ्ट मोस्ट डिजिट ले लो यहाँ से और लेफ्ट मोस्ट डिजिट ले लो यहाँ से. 2 और 9, which one is bigger? which one is larger? 9. So this whole number will be larger. Are you understanding? Okay, take one more example. 4, 2, 6, 9 and 1, 9, 7, 8. Right kids? We have to compare here. चलिए फटाफट कंपेयरिंग कर लीजिए आप, then मैम will discuss. आपको मैम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, आप फटाफट कंपेयरिंग कर लीजिए 10 काउंट्स and then we will discuss. Okay बच्चा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, तो सबसे पहला रूल क्या है, जब हमारे पास कंपेयरिंग के लिए नंबर्स हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स. 1, छोटा डॉट, इंक्रीज द डॉट. ओके, so this is 1, 2, 3, 4 डिजिट नंबर हुआ ये. 1, 2, 3, 4. दिस इज ऑल्सो अ 4 डिजिट नंबर. जब हमें इक्वल डिजिट्स मिल रही हैं तो रूल हमारा फेल हो रहा है. ओके, नाउ रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग व्हाट वी विल डू, वी विल टेक 4 फ्रॉम हियर. ओके, 4 कम हियर. वी विल टेक 1 फ्रॉम हियर. ओके, 1 कम हियर. और अब 4 और 1 के बीच में बैटल होगा. ऑब्वियसली कौन विन करने वाला है? 4. इफ 4 इज हियर टू विन, दैट मीन्स ये नंबर भी बिगर हो गया, ये नंबर विन कर जाता है, द लेफ्ट वन. राइट? कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? पक्का? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आप बच्चे पढ़ेंगे वो सिचुएशन जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स भी सेम है और लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी सेम है. इट कुड बी द सिचुएशन, couldn't it be? Yes, it could be the situation. Third situation is when both numbers have same digit, have same number of digits with same leftmost digit. क्या कहना चाह रही है मैम? मैम ये कहना चाह रही हैं कि अब थर्ड सिचुएशन थोड़ी सी और क्रिटिकल बनाते हैं. वो हम ये करेंगे कि हमारे पास दो नंबर हैं,
दोनों में सेम डिजिट्स हैं और दोनों में जो हम अभी तक कंपेयर कर रहे थे ना लेफ्ट मोस्ट वाला नंबर वो भी सेम है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा दिखेगा। इट वुड लुक समथिंग लाइक 495 and 486. Let's suppose this is the number. So what we need to do first? We need to compare digits. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Done? Three digits. Okay, now we need to compare the leftmost number. So let's take the leftmost digit from here and the leftmost digit from here. So here it is 4 and from here it is 4. So this will be equal. हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी लेफ्ट मोस्ट डिजिट सेम है। तो अब हम स्विच करेंगे हंड्रेड्स के बैक पोजीशन पे, दैट मीन्स 9 को ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चे, नाउ विल टेक 9 और इधर से भी हम 8 ले लेंगे, टेंस प्लेस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। सो लेट्स कंपेयर इट हियर। ये हमारा 9 है और ये हमारा 8 है। सो विच वन इज ग्रेटर? Which one is greater बच्चा? Definitely this 9. 9 is greater. So this number will be the greater number comparing these two. Between these two number, it will 495 will be greater than 486. Okay? 495 will be greater than 486. अब कोई specific third fourth rule नहीं है। रूल इन जिस्ट अगर मैं बोलना चाहूँ, जस्ट हैव टू जॉट डाउन दैट what we need to do when we have both the number with same number of digits. Let's suppose it is also a 4-digit number, it is also a 4-digit number. What we need to do? सबसे पहले हम leftmost digit, the leftmost digit of this number is this and this number is this, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर ये भी सेम है तो हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर ये भी सेम है तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और लास्टली हम लास्ट वाले डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग? सो आई एम जस्ट क्लियरिंग इट आउट एंड गिविंग यू अ क्वेश्चन सो दैट वी कैन हैव अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग। इफ इट इज 2, 8, 5, 9, द फर्स्ट नंबर हियर and the another number is 2, 8, 9, 4. Right kids? Or I would just change it a little bit. Okay, it's not taken. Okay, 9, 9. Fine. So what we need to focus, सबसे पहले तो हमें क्या करना है बच्चा, सबसे पहले we need to count digits 1, 2, 3, 4, right? 1, 2, 3, 4. We have 4 digits in each number. दोनों ही numbers 4 digits के हैं, 4-digit numbers हैं, they both are 4-digit numbers. Okay, fine. Now next step is leftmost digit को compare करना. This is leftmost digit. 2, 2. इक्वल, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। दिस इज 8 एंड फ्रॉम हियर इट इज ऑल्सो 8, इट इज ऑल्सो इक्वल, नो प्रॉब्लम। अब हम फिर से जंप करेंगे और जंप करने के बाद वी विल कंपेयर अगेन दिस 5 एंड दिस 9. Finally, we have a difference of digit. This is 5 and this is 9. Undoubtedly, 9 is greater. So 9 lies here. 9 is a part of this number. So that means this is the larger number. अब आप बोलोगे मैम 9 यहाँ पर भी है, लेकिन जो हम कंपेयरिंग कर रहे हैं, we are comparing 5 and 9. तो 5 और 9 में कंपेयरिंग में 9 कहाँ पर है, इस पे है, तो दिस नंबर विल बी द ग्रेटर नंबर। ओके, नाउ सेम क्वेश्चन, अब जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन वाज, इसे में इंक्लूड कर देते हैं। द क्वेश्चन वाज विच प्लेस वैल्यू
which place value determines or tells the larger number. सो कौन सी प्लेस वैल्यू हमें लार्जर नंबर बता रही है? और हमारे पास ऑप्शंस जो थे, ऑप्शंस वो वंस, ऑप्शन बी वॉज टेंस, ऑप्शन सी ले लेते हैं हंड्रेड्स, और ऑप्शन डी ले लेते हैं थाउजेंड्स. राइट किड्स? सो नाउ लेट्स चेक व्हाट वी हैव हियर. अब आप लेट्स डू वन थिंग कि हम वो लिख देते हैं, प्लेस वैल्यू लिख देते हैं. सो दिस इज वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, एंड दिस इज थाउजेंड्स प्लेस. Here also this is ones place, tens place, hundreds place and thousands place. अच्छा, thousands place अब हमको देखना है कि किस पर्टिकुलर प्लेस से हमें ये मालूम पड़ा कि नंबर ग्रेटर है, नंबर लार्जर है. तो थर्ड स्टेप में मतलब 5 और जब 9 को कंपेयर किया, मतलब टेंस प्लेस की वैल्यू को जब हमने कंपेयर किया, when we have compared this 5 and this 9, then only we came to know that द नंबर हैव अ डिफरेंस. जब 5 और 9 को कंपेयर किया तभी तो हमें मालूम पड़ा कि ये वाला नंबर लार्जर है. उससे पहले तो दोनों सेम जा रहे थे, ये भी 2 था, ये भी 8 8 2 2 8 8. हमें नहीं मालूम पड़ रहा था कि कौन सा लार्जर है. सबसे पहले 2 कंपेयर किया, दोनों सेम है. जब दोनों सेम है तो हम लार्जर तो नहीं बोल सकते. देन वी हैव कंपेयर्ड 8 8. आगे से सेकेंड मतलब लेफ्ट से सेकेंड लेफ्ट को कंपेयर किया. दिस इज सेकेंड लेफ्ट. ऑर्डिनल नंबर हम पढ़ चुके हैं ना, दीज आर लेफ्ट मोस्ट. और फिर ये हमारा लेफ्ट से सेकेंड नंबर को हमने कंपेयर किया, वो भी सेम है. देन हमने थर्ड नंबर को कंपेयर किया. ये जो थर्ड नंबर है कौन सी प्लेस पर लाई करता है? इट इज़ लाइन कहाँ पर? टेंस प्लेस पर. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. अब आप बताइए, आपका जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें किसने किसने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया था? डिजिट्स वैरी कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन कुछ आपका ऐसा ही था, राइट? और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो अब थोड़ा सा एप्लीकेशन कर लेते हैं एंड वी विल वाइंड अप. ओके, अगेन which place value will determine थोड़ा सा अच्छा वर्ड लगता है, टेल्स थोड़ा सा इनफॉर्मल सा लग जाता है. द लार्जर नंबर बिटवीन the two. Okay, first number is 2 4 8. स्पेशली सेकेंड ग्रेडर्स आपके लिए बना रही हूँ. एंड सेकेंड नंबर इज 2 8 9. ऑप्शन ए वंस, ऑप्शन बी टेंस, ऑप्शन सी हंड्रेड्स. चलिए बताइए, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट. Okay, most of the students have answered definitely. So which option will be the correct answer for this question? चलिए डिस्कस करते हैं. So larger number हमें देखना है. हम सबसे पहले क्या देखते हैं बच्चों? सबसे पहले हम काउंट करेंगे डिजिट्स. 1 2 3, 1 2 3. अब आप बोलोगे मैम ये तो सब बच्चों वाली चीज़ें, मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसे, मुझे तो डायरेक्ट आता है. बट किड्स, स्टेप बाय स्टेप करना बहुत ज़रूरी है जब तक हम बहुत कॉन्फिडेंट और हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो जाएं. अब आपको क्या लगता है मैम ऐसे ही करते होंगे? लेकिन मैम ने जब सीखा था तो ऐसे ही सीखा था. काउंट करना स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप मिनिमाइज कर दोगे मिस्टेक्स को. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमारे पास 3 3 डिजिट दोनों में ही है तो हम अब कंपेयरिंग स्टार्ट करेंगे.
सबसे पहले हम 2 और 2 को कंपेयर करेंगे। वी हैव 2 हियर एंड 2 हियर, दे आर इक्वल, तो हमें नहीं मालूम पड़ा। 100 से अब हम टेंस प्लेस पर चलते हैं। वी हैव 4 हियर एंड 8 हियर, सो 8 इज़ ग्रेटर, दैट मीन्स दिस नंबर इज़ ग्रेटर। और ये हमें किस प्लेस से, कौन सी प्लेस वैल्यू डिटरमाइन कर रही है, कौन सी प्लेस वैल्यू डिटरमाइन कर रही है, तो हमारी टेंस प्लेस डिटरमाइन कर रही है। अब आप बोलोगे मैम कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 8 और 9 को कंपेयर कर दिया, 8 और 9 को कंपेयर कर दिया, बट 8 और 9 को हम कंपेयर नहीं करते हैं तब तक जब तक कि आगे के सारे नंबर सेम ना हो। मतलब वंस प्लेस तो सबसे लास्ट में आती है, हम सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। अगर 4 डिजिट नंबर है तो हम 1000 से स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट नंबर है तो हम 100 से स्टार्ट करेंगे, 2 डिजिट नंबर है तो 10 से स्टार्ट करेंगे, और सिंगल नंबर है तो हम ऑब्वियसली उसी को कंपेयर करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंपेयरिंग नंबर। एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। रूल नंबर 1, हमें सबसे पहले कंपेयर करना है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। वी फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू कंपेयर total number of digits. If two numbers have different number of digits, then the number with larger number of more number of digits will be the greater number. That means अगर हमारे पास दो numbers हैं और दोनों में different digits हैं, एक 2 डिजिट नंबर है, एक 3 डिजिट नंबर है, या एक 3 डिजिट नंबर और दूसरा 4 डिजिट नंबर है, तो जो 4 डिजिट नंबर है या वो नंबर जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो हमेशा लार्जर होगा। रूल नंबर 2, जब दोनों ही नंबर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इधर भी 4 डिजिट्स और इधर भी 4 डिजिट्स, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू, मतलब अगर 4 डिजिट नंबर है तो थाउजेंड्स, दोनों के थाउजेंड्स डिजिट को कंपेयर करेंगे। ओके, अगर 3 डिजिट नंबर है तो दोनों के हंड्रेड्स डिजिट को हम कंपेयर करेंगे। वी विल स्टार्ट कंपेयरिंग लाइक दिस। रूल नंबर 3, अगर सिचुएशन ऐसी है कि हमारे दोनों नंबर्स सेम डिजिट्स होल्ड करते हैं, मतलब दोनों ही 4 डिजिट के नंबर्स हैं और दोनों की ही थाउजेंड्स प्लेस पर जो डिजिट है वो भी सेम है, तो अब हम जंप करेंगे दोनों की हंड्रेड्स डिजिट पे। हम दोनों की हंड्रेड्स डिजिट को कंपेयर करेंगे, हंड्रेड्स भी सेम है, हम जंप करेंगे टेंस डिजिट पर, टेंस भी सेम है, हम जंप करेंगे वंस डिजिट पे। तो हम इस तरह से जंप करेंगे, हायर टू लोअर हम आएंगे, थाउजेंड्स, देन हंड्रेड्स, देन टेंस, देन वंस। Understanding kids? And this is the only learning of comparing numbers. I hope इसके बाद आपके comparing numbers के questions wrong नहीं होने चाहिए। क्विज बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या वेबसाइट में आपके वीडियो देख रहे हैं नीचे आपको क्विज बटन मिलेगा, बस क्लिक करिए और अपने जो भी आपने लर्निंग किया है, जो सीखा है, उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए आपने किस लेवल पर सीख लिया और कितना बाकी है अभी सीखना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग विद मी एंड मैथ। बाय बाय।